یہ کہانی ایک ایسے شخص کی ہے جو دنیا کی کامیابی کے پیچھے اس قدر دوڑ رہا تھا کہ وہ حقیقت میں اپنی زندگی کے سب سے اہم پہلوؤں کو کھو بیٹھا۔ کریم ایک جوان اور کامیاب تاجر جسے اپنی دولت اور شہرت پر فخر تھا، یہ سمجھتا تھا کہ خوشی، محبت اور سکون صرف طاقت اور پیسہ سے ملتے ہیں۔ لیکن جب تک وہ اپنی کامیابی کا جشن مناتا رہا، اس نے اپنی زندگی کے وہ قیمتی رشتہ، سکون اور وقت کھو دیا جن کی اصل قیمت کبھی سمجھ نہیں پائی تھی۔ ایک دن ایک درویش کی ملاقات نے اس کی دنیا بدل ڈالی۔ وہ درویش جس کی زبان پر 3 سادہ سی نصیحتیں تھیں جو کریم کی زندگی کو ایک نیا رخ دے سکتی تھی۔ کیا کریم ان نصیحتوں پر عمل کر کے اپنی زندگی کو دوبارہ بہتر بنا سکے گا؟ وہ صرف پچھتاوے میں غرق ہو جائے گا؟ یہ کہانی ہے ایک شخص کی جو سیکھنے کے لیے دیر سے آیا، مگر کیا وہ ابھی کچھ بدل سکتا ہے؟ ایک سبق، ایک سفر اور ایک نیا آغاز۔ کہانی کا آغاز ایک عام مگر لالچی شخص کریم اسے ہوتا ہے جو ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوا۔ بچپن سے ہی اس کے دل میں ایک ہی خواہش تھی، امیر بننا۔ وہ اپنے غریب والدین کو دیکھتا اور دل ہی دل میں قسم کھاتا کہ وہ کبھی ایسی زندگی نہیں گزارے گا۔ کتابوں سے دور وہ صرف ان لوگوں کی باتیں سنتا جو دولت کی بات کرتے، بڑی گاڑیوں کی، محلات کی۔ وہ سوچتا کہ اگر دولت آ جائے تو ہر مسئلہ حل ہو جائے گا، عزت خود ملے گی، لوگ سر جھکائیں گے۔ کریم دن رات محنت کرتا، لیکن صرف پیسہ کمانے کی نیت سے۔ ہر کاروبار، ہر موقع، ہر شخص اس کے لیے صرف ایک سیڑھی تھا۔ اس کے دوست اسے سمجھاتے، کریم سکون دولت میں نہیں، دل کی نیت میں ہے، لیکن وہ ہنستا اور کہتا، دل کی باتیں وہ لوگ کرتے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ اس کی دولت میں اضافہ ہوا، لیکن اس کی خوشی کم ہوتی گئی۔ دل بے چین رہتا، نیند ادھوری، چہرہ بظاہر کامیاب لیکن باطن میں خالی۔ تب ایک دن کسی نے اسے ایک درویش کا ذکر کیا جو سچائی اور سکون کی باتیں کرتا تھا اور جس کی نصیحتیں لوگوں کی زندگی بدل دیتی تھیں۔ کریم نے فیصلہ کیا کہ وہ اس درویش سے ملے گا، نہ کسی مذہبی جذبے سے، بلکہ اس امید میں کہ شاید وہ کوئی شارٹ کٹ بتا دے جو اسے مزید امیر بنا دے۔ وہ سوچ رہا تھا، ایک بار اس درویش سے مل لوں، اگر اس کے پاس کوئی راز ہوا تو میں باقی دنیا سے پہلے جان جاؤں گا۔ اسی ارادے کے ساتھ وہ اپنی آسائش بھری دنیا سے نکل کر اس راستے پر روانہ ہوا جس کا انجام اسے خود معلوم نہیں تھا۔ کریم نے سنا تھا کہ پہاڑوں کے اس پار ایک درویش رہتا ہے جو نہایت دانا، خاموش اور درویشی میں ڈوبا ہوا انسان ہے۔ لوگ کہتے تھے کہ وہ کسی سے زیادہ بات نہیں کرتا، مگر جو اس سے سچی نیت سے مشورہ لے اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ کریم کو لگا کہ شاید وہی درویش اسے کوئی ایسا راز دے گا جس سے وہ جلد از جلد مزید امیر بن سکے۔ کریم نے سفر کی تیاری کی۔ پہلی بار اس نے وہ آرام دہ گاڑی، نرم بستر اور خادموں کی سہولت کو پیچھے چھوڑا۔ وہ پہاڑی راستوں سے گزرا، ندیوں کو پار کیا، تیز دھوپ میں چلا، کئی دن بھوکا رہا، اور اس دوران دل میں بس یہی ایک سوال تھا، کیا وہ درویش واقعی میری مدد کرے گا؟ راستے میں اسے کئی مسافر ملے، کچھ فقیر، کچھ عقلمند اور کچھ ایسے لوگ جو درویش سے مل چکے تھے۔ وہ سب کہتے، درویش کسی کو دولت نہیں دیتا، وہ صرف نظر کا زاویہ بدلتا ہے۔ لیکن کریم کے دل میں پھر بھی یہی بات تھی کہ شاید وہ کچھ خاص بتائے گا، کوئی وظیفہ، کوئی خفیہ علم، کوئی ایسا کلمہ جس سے خزانے کھل جائیں۔ آخرکار وہ ایک دن درویش کے کچے سے حجرے تک پہنچ گیا۔ وہ جگہ بہت سادہ تھی، مٹی کا فرش، درختوں کی چھاؤں اور ایک خاموش نورانی چہرے والا بوڑھا شخص۔ وہی درویش تھا۔ کریم نے درویش کو سلام کیا اور بڑے فخر سے اپنی کامیاب زندگی کا ذکر کیا جیسے وہ دنیا کا سب سے کامیاب انسان ہو۔ اس نے کہا، بابا جی میں دولت مند ہوں مگر دل بے سکون ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کچھ خاص سکھائیں، کوئی راز بتائیں تاکہ میں اور کامیاب ہو جاؤں۔ درویش نے خاموشی سے کریم کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس نے نہ فخر کو سراہا نہ دولت کی تعریف کی۔ پھر وہ آہستہ سے بولا، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ 3 نصیحتوں میں ہے۔ اگر تاؤ ان پر عمل کرے تو سب کچھ پالے گا، اگر ان کو نظر انداز کرے تو سب کچھ کھو دے گا۔ یہ سن کر کریم حیران رہ گیا۔ بس 3 نصیحتیں، یہ تو کچھ بھی نہیں لگتا تھا۔ کریم جو دولت کے نشے میں خود کو سب سے عقلمند سمجھتا تھا، درویش کی بات سن کر کچھ مایوس ہوا۔ اس نے دل میں سوچا، یہ بوڑھا شخص مجھے بس 3 نصیحتیں دے کر میری زندگی بدلنے کی بات کر رہا ہے۔ مجھے تو کوئی خفیہ راز چاہیے تھا، لیکن اس نے خاموشی سے درویش کی بات سننے کا فیصلہ کیا۔ درویش نے آنکھیں بند کی، چند لمحے خاموشی میں گزرے، پھر اس نے آہستہ اور پرسکون لہجے میں کہا، پہلی نصیحت،
जब कभी तुम्हें गुस्सा आए इस वक्त कोई बड़ा फैसला मत करना। गुस्से में किया गया फैसला अक्सर पछतावे में बदल जाता है। करीम ने सर हिलाया मगर दिल में सोचा, ये तो एक आम सी बात है, ये तो मुझे पहले से पता है। दूसरी नसीहत, जो बात तुम्हें सुनने में अजीब लगे इस पर फौरन यकीन मत करना। हर बात के पीछे हकीकत होती है और हकीकत हमेशा पहली नजर में नहीं दिखाई देती। करीम ने हुंकारा भरा लेकिन अंदर से बेजार हो रहा था। ये सब तो पुरानी बातें हैं, कोई खास राज तो नहीं दिया जा रहा। तीसरी नसीहत, वक्त सबसे कीमती चीज है। पैसा वापस आ सकता है, रिश्ते जा सकते हैं, मगर वक्त अगर एक बार गुजर जाए तो कभी वापस नहीं आता। इसलिए वक्त को फजूल चीजों में जाया मत करो। करीम ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ दरवेश का शुक्रिया अदा किया, लेकिन इसके दिल में मायूसी थी। इसने कहा, बस यही 3 बातें। दरवेश ने सिर्फ एक जुमला कहा, उन पर अमल कर लो, कामयाब हो जाओगे, वरना जिंदगी खुद तुम्हें उनका मतलब समझा देगी। तकलीफ के साथ करीम ने दिल में फैसला कर लिया कि ये सब फजूल है। इसने दरवेश का शुक्रिया अदा किया मगर अंदर ही अंदर वो नाराज था। इसने सोचा कि इस बूढ़े ने इसका वक्त जाय किया। वो वापस पलट गया, उन 3 बातों को अपने दिमाग से निकालकर फिर से अपने ख्वाबों की दुनिया में गुम हो गया, ये सोचे बगैर कि ये नसीहतें इसे आगे चलकर कहां ले जाएंगी। करीम दरवेश की सोहबत से वापस आया तो उसके चेहरे पर नागवारी छपी ना रह सकी। इसने अपने खादिम से कहा, इतनी दौर का सफर किया और बदले में 3 आम सी बातें मिले, क्या ये कोई राज था? ये तो हर किताब हर बूढ़े की जुबान पर होता है। वो दिल ही दिल में दरवेश को कोसने लगा कि इसने अपना कीमती वक्त जाय किया। करीम ने इन नसीहतों को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया। वो दोबारा अपने कारोबार में मशगूल हो गया। इसकी दौलत बढ़ती रही मगर गुरूर भी बढ़ता गया। इसकी जुबान सख्त हो गई और मिजाज में चिड़चिड़ापन आ गया। अब वो अपने मुलाजिमीन पर चिख्ता, दोस्तों को नजरअंदाज करता और रिश्तेदारों से कत ताल्लुक कर चुका था। पहली नसीहत, गुस्से में फैसला न करना, इसके जहन से बिल्कुल निकल चुकी थी। एक दिन मामूली बात पर अपनी बीवी से झगड़ा हुआ। वो चीखा चलाया और गुस्से में आकर 3 तलाक दे बैठा। बीवी गिड़गिड़ाती रही मगर इसने ना सुना। चंद घंटों बाद जब गुस्सा ठंडा हुआ तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, मगर अब कुछ भी वापस नहीं आ सकता था। इसी दौरान एक करीबी दोस्त ने इसे खबरदार किया कि कारोबार में एक पार्टनर उसके पीछे साजिश कर रहा है। बगैर तहकीक किए करीम ने इस दोस्त पर ही इल्जाम लगा दिया और ताल्लुक तोड़ लिया। ये दूसरी नसीहत की खिलाफ वर्जी थी, हर बात पर फौरन यकीन न करना। बाद में इसे पता चला कि वो दोस्त ही दरअसल उसके खिलाफ साजिश से बचा रहा था। अब करीम तन्हा हो चुका था। बीवी चली गई, दोस्त छोड़ गए और घर में सिर्फ नोटों के अंबार थे। लेकिन अब इन नोटों में वो खुशी न थी। इसे वो दरवेश की तीसरी बात याद आई, वक्त सबसे कीमती चीज है, मगर तब बहुत सा कीमती वक्त गुजर चुका था। इसके इर्द गिर्द खामोशी थी, तन्हाई थी और एक सवाल, अगर मैंने इन 3 बातों पर अमल कर लिया होता तो शायद मेरी जिंदगी कुछ और होती। मगर अब पछतावा ही इसका हमसफर बन चुका था। करीम की जिंदगी अब एक सुनसान महल की मानिंद हो चुकी थी, बाहर से शानदार, अंदर से खाली। वो शख्स जो कभी दौलत की ऊंचाइयों पर फख्र करता था अब अंदर ही अंदर टूट रहा था। बीवी की जुदाई, दोस्तों की बेरुखी और रिश्तों की खामोशी ने इसे ऐसी तन्हाई दे दी थी जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। कारोबार अब भी चल रहा था मगर करीम को इससे खुशी नहीं मिलती थी। इसे वो तमाम लम्हात याद आने लगे जो वो दौलत कमाने में गंवा बैठा था। वो जुमा के दिन जब माँ दुआ के लिए बुलाती थी, वो शामें जब बीवी हाथ में चाय लेकर उसके साथ बैठना चाहती थी, वो दोस्त जो सिर्फ इसकी मुस्कुराहट के लिए साथ थे, सब कुछ वक्त के साथ खो गया। इसी दौरान एक कारोबारी धोखा सामने आया। इसका एक पार्टनर जिसे वो अंधा एतमाद देता था, करोड़ों रुपए लेकर फरार हो गया। अदालत, पुलिस, सब कुछ आजमा लिया मगर नुकसान पूरा ना हो सका। ये वो लम्हा था जब करीम को पहली बार अपने गुरूर पर शक हुआ। इसे याद आया कि अगर इसने इस सच्चे दोस्त की बात पर शक न किया होता तो शायद वो आज ये नुकसान ना उठाता। अब वो ज्यादातर खामोश रहने लगा, लोगों से कम मिलता, बातचीत छोड़ दी और अक्सर रातों को नींद में चौंक कर जाग जाता। इसकी आंखों में एक खालीपन था और दिल में बेसुकूनी। वो एक बार फिर दरवेश की नसीहतों को याद करने लगा,
नसीहतें जिन्हें इसने मजाक समझकर ठुकरा दिया था। फिर एक दिन तन्हाई से तंग आकर इसने फैसला किया, मुझे दोबारा इस दरवेश से मिलना है। शायद अभी भी कुछ बाकी हो, शायद अभी भी मेरी इस्लाह मुमकिन है। इस बार वो गुरूर के साथ नहीं, आजिज़ी के साथ निकला। न कोई उम्मीद थी कि वो दौलत पाएगा, न कोई सवाल था। बस दिल में एक ख्वाहिश थी कि शायद वो दोबारा वो शख्स बन जाए जो कभी खुश था। लेकिन इसे ये मालूम न था कि वक्त जो सब कुछ सिखाता है, सब कुछ वापस नहीं देता। करीम ने दोबारा दरवेश की तलाश शुरू की। वो जानता था कि दरवेश का एक राज इल्म ही है जो इसे वो सुकून दे सकता है जो वो दहाइयों से तलाश कर रहा था। लेकिन जितना वो दरवेश के बारे में मालूमात हासिल करता, इतना ही वो अफसोस और पछतावे की गहराइयों में डूबता जाता। इसे याद आया कि जब दरवेश ने इसे पहली बार नसीहत दी थी तो इसने सिर्फ आंखों की तरफ देखा था, और अब जब उसकी आंखों में सच का दर्द था तो वो हर लफ्ज की अहमियत समझ चुका था। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। करीम ने वो पहला कदम उठाया जो इसे कभी दरवेश से सीखना चाहिए था। मैं अपनी गलतियों का एतराफ करता हूं। इसने अपने अंदर की अना और गुरूर को शिकस्त दी। वो जानता था कि वक्त नहीं रुकेगा, मगर वो अपनी जिंदगी के बाकी हिस्से में जितना भी मुमकिन हो सके अपने किए गए फैसलों की तलाफी करेगा। इसकी जिंदगी में अब सिर्फ एक चीज बाकी थी, पछतावा। वो सब कुछ गंवा चुका था और दरवेश के अल्फाज अब उसके दिमाग में गूंजते रहते थे जैसे एक दायमी अजियत की तरह। लेकिन फिर भी एक उम्मीद की किरण थी कि शायद अभी भी कुछ नया शुरू हो सके अगर वो अपने आप को सही राह पर ले आ सके। करीम का दिल टूट गया। वो जानता था कि इसकी जिंदगी में जो तब्दीली आ सकती थी वो सिर्फ दरवेश की नसीहतों से आ सकती थी, लेकिन अब वो नसीहतें सिर्फ यादें बनकर रह गई थीं। वो सोचने लगा, अगर मैं इस वक्त उन नसीहतों पर अमल करता तो शायद आज मेरी जिंदगी कुछ और होती। कई दिनों तक करीम ने खुद को दरवेश के बारे में सोचते हुए गुजारा। वो खुद को मलामत करता, खुद को इल्जाम देता कि इसने देर से सीखा और अब कुछ भी वापस नहीं आ सकता। इसने सोचा, मेरे पास दौलत है मगर खुशी नहीं है, मेरे पास सब कुछ है मगर सुकून नहीं है। करीम को अब ये समझ आ चुका था कि जिंदगी की हकीकी कीमत दौलत, शोहरत और दुनियावी चीजों में नहीं है बल्कि वक्त की कदर में है। वो समझ गया था कि दरवेश की बातें महज कुछ हिदायत नहीं बल्कि जिंदगी का मुकम्मल फलसफा है। अगर वो उन बातों पर अमल करता तो वो अपनी दुनिया को बेहतर बना सकता था। लेकिन अफसोस, वक्त गुजर चुका था। इसके फैसलों के असरात अब उसकी जिंदगी पर पड़ चुके थे। इसके पास अब वो सब कुछ नहीं था जो उसके पास होना चाहिए था, मोहब्बत, सुकून और वो हकीकी खुशी जो सिर्फ दिल की पाकीज़गी से आती है। करीम का दिल अब बोझ से दबा हुआ था। इसने खुद को कई बार मलामत की और हर गुजरे दिन के साथ पछतावे की शिद्दत बढ़ती गई। वो जानता था कि अब इसके पास ना तो इसकी बीवी वापस आ सकती थी, ना वो दोस्त जो कभी इसके साथ थे, और ना ही वो सुकून जो उसके दिल में कभी हुआ करता था। एक दिन जब वो अपनी जिंदगी के बारे में गहरी सोच में गर्क था, इसके जहन में एक सवाल आया, क्या मेरी जिंदगी में कुछ भी बाकी है? क्या अभी भी कुछ ऐसा है जो मैं ठीक कर सकता हूँ? वो अपने आप से यही सवाल करता रहा और फिर इसे वो सब कुछ याद आया जो दरवेश ने कहा था। 3 नसीहतें जो इसने मजाक समझकर नजरअंदाज कर दी थी। फिर एक दिन इसे एहसास हुआ कि उन नसीहतों को जानना और उन पर अमल करना इसका सबसे बड़ा सबक था। दरवेश की सबसे बड़ी बात यह थी कि वो किसी को फौरन जज नहीं करता था, वो किसी के अंदर की हकीकत को समझता था। करीम ने अपने आप से वादा किया कि अब वो जो भी करेगा दिल की सच्चाई से करेगा। इस दिन के बाद करीम ने अपने आप को एक नया आगाज देने की कोशिश की। इसने अपने गुस्से पर काबू पाया, दूसरों के साथ बेहतर सलूक किया और वो वक्त की कदर करने लगा जो वो पहले ज़ाया करता रहा था। इसने अपने कारोबार को दोबारा तरतीब दिया, लेकिन अब उसकी तवज्जो सिर्फ पैसे पर नहीं बल्कि लोगों की इज्जत और मोहब्बत पर थी। करीम जानता था कि इसके लिए सब कुछ वापस नहीं आ सकता, मगर वो अपने बाकी वक्त को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा था। वो जान चुका था कि असल कामयाबी सिर्फ दुनियावी चीजों में नहीं बल्कि इंसान की अंदरूनी तब्दीली में है। अब उसके पास पछतावा था, लेकिन उम्मीद भी थी, और यही उम्मीद थी जो उसकी जिंदगी को नए मानी दे रही थी।